સમાચાર મળી રહ્યા છે જે આરોપીઓ ઝડપાયા છે તેમના અંગે મોટો ખુલાસો થયો છે। 20 માર્ચે રેવડી બજારમાં આગ ચંપી કરવામાં આવી હતી। આ અંગે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જોઈન્ટ સીપીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ અત્યારે ચાલી રહી છે। પ્રવીણ જે છે એ ગયા વર્ષ માર્ચ 2020 દરમિયાન એક બાબા પઠાણ નામની વ્યક્તિના સંપર્કમાં ફેસબુક માધ્યમથી આવેલો, જેનું ફેસબુક પેજ બાબાભાઈ કંપની અને રાજાભાઈ કંપની એમ નામ બદલીને એ ફેસબુક માધ્યમથી એની સાથે ચેટ કરતો હતો। અને આ જે બાબા પઠાણ નામની જે વ્યક્તિ છે એણે પ્રવીણભાઈ જે છે એણે આપણે આ વિસ્તારમાં એવા કામો કરવા માટે જણાવેલો જેનાથી કોઈ પહેલું કામ એને આપેલું કે તું કોઈ એવા વ્યક્તિની હત્યા કરી નાખ। એટલે એના માટે એણે એક વેપન ખરીદવા માટેના પ્રયાસ કરેલા। આ વેપન ખરીદવા એ મધ્યપ્રદેશ ગયા અને વેપન લઈને જ્યારે મધ્યપ્રદેશથી પરત આવતો હતો ત્યારે પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન એ વ્યક્તિ પકડાઈ ગયેલા અને એના ઉપર આર્મ્સ એક્ટનો કેસ દાખલ થયેલો। તે પછી અમુક સમય પછી એણે ફરીથી એને કીધું કે તમે કંઈ બીજું કામ કરો, એટલે કોઈ એવી જગ્યા શોધો જ્યાં ભીડભાડ હોય અને વધારે લોકો આવતા હોય, ત્યાં આગ અકસ્માતનું કામ કરો। તો આ અનુસંધાને એણે આ રેવડી બજારમાં આગ લગાવેલી। હવે એને માટે એને જે પૈસા મળેલા છે વેપન ખરીદવા માટે એને 25,000 રૂપિયા પહેલા વ્યક્તિએ પેટીએમ મારફતે મોકલાવેલા અને આંગળીયામાં જે આગ અકસ્માત છે એના માટે જે બનાવ બનેલા છે તેના એને પૈસા 1.5 લાખ રૂપિયા એને આંગળીયા પેટે મોકલાવેલા, જે તપાસ કરતા મુંબઈ અને પછી એ આંગળીયાના પૈસા ઠેઠ દુબઈથી અહીંયા સુધી આવેલા। હવે આ જે વ્યક્તિ છે બાબાભાઈ, જેને ફેસબુક એકાઉન્ટ સાથે એ સામેલ છે, આમાં અમુક અન્ય ફેસબુક જે ફ્રેન્ડ્સ છે એના આમાં અમુકમાં સૂત્રો પણ એવા લખેલા છે જે ઇસ્લામે જાર સોલ વગેરે વગેરે। તો એ રીતથી એ લોકોએ અહીંયા ISIના ઇશારે એક નવું મોડ્યુલ ઊભું કરવામાં આવેલો, જેમાં જે નાના જે ક્રિમિનલ્સ છે એનો ઉપયોગ કરીને અને દેશને આર્થિક નુકસાની થાય, આંતરિક સુરક્ષા જોખમાય તેવા કૃત્યો કરવા માટે આવા લોકોને ઉશ્કેરણી અને એની તૈયારી કરવામાં આવેલી છે। તે મુજબ એ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં અને આમાં 2 આરોપીઓ અટક થયેલા છે, ભૂપેન્દ્ર ઉર્ફે પ્રવીણ અને અનિલ ખટીક। એ પૈકી એક અંકિત પાલ છે, એને કોરોના છે અત્યારે, એટલે એની એ ચાલે છે અને આગળની તપાસ ACP ક્રાઇમ ચલાવી રહ્યા છે। સર, આજે આરોપીઓ છે તે લોકોનો કોઈ બીજો ગુનાહિત ઇતિહાસ કે આ આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે કઈ રીતે એની માનસિકતા સાથે આ લોકો જોડાયા? बेसिक में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। मतलब जो बाबा पठान है, बाबा पठान उसने एक फिशिंग प्रोफाइल बनाया था। उसके फिशिंग प्रोफाइल में हथियार के फ़ोटो थे, गैंगस्टर्स के फ़ोटो थे। ये करने का कारण ये था कि उसके पास भी जो क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो अट्रैक्ट हो, इसीलिए उसने ये फिशिंग प्रोफाइल बनाया था। वो फिशिंग प्रोफाइल बनाने के बाद वो जो उसको लगे कि क्रिमिनल माइंड वाला व्यक्ति है उसको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के साथ उसको फेसबुक मैसेंजर में चैटिंग करता था और फिर फेसबुक मैसेंजर में उसको लगे कि ये बंदा अपने काम का है, फिर उसको वो स्विच ओवर करता था व्हाट्सएप पे। और उसके कम से कम हमें 7 या 8 व्हाट्सएप अभी मिले हुए, सभी के सभी वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप यूज़ करता था। यूक्रेन, इस्टोनिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, कॉन्गो, ये सब व्हाट्सएप नंबर उसने यूज़ किए हुए हैं। ये रिक्रूटिंग जो है व्हाट्सएप पे वो कर लेता था, उसको पता चल जाए कि ये सही में अपने काम का बंदा है, फिर उसके बाद वो स्विच करता था और सिक्योर चैनल से, जैसे Bro6 एप्लीकेशन हो गया, विकर एप्लीकेशन हो गया, ये सिक्योर जो एप्लीकेशन है उसमें स्विच करता था। फिर वो एप्लीकेशन पे आके उनको टास्क देता था
ये फिर बाद में टास्क देने के बाद ही वॉज जस्ट चेकिंग, अपने केस में ही वॉज चेकिंग, उसने पहला टास्क दिया, उसने तो आधा कर दिया, दूसरा टास्क दिया कर दिया, और ये टास्क मतलब उनको बोला गया था भाई यू हैव टू चूज़, कि आप चूज़ करो। जैसे पहले जो हत्या करना था उसको बोले 2 नंबर का जो भी आदमी है मैं अहमदाबाद में, उसको आप चॉइस करो और उसको मारो। फिर बाद में बोला गया कि भाई आपके चॉइस का जो बड़ा मार्केट है कापड़ मार्केट, उसमें आग लगाओ। अभी इसके बाद उसका स्टेप था कि मतलब चॉइस वाला, कि वो हैंडलर जो था बाबा पठान वो बोलेगा कि इसको मारना है। फिर इसके बाद ये स्टेज था कि वो उससे उसका चाहिए वो काम करवाए। सर ये लोन वुल्फ अटैक जैसा आप बता रहे हैं कि सिंगल एंटिटी जब किसी को टारगेट करना होता है, तो क्या आपने आइडेंटिफाई किया था कोई नोन व्यक्ति को कि इसको मारना है? इसमें उसने जैसे डीसीपी साहब ने अभी बताया कि उसने ये कहा कि आप अपने हिसाब से टारगेट चूज़ करिए और अपने हिसाब से आप उसको मारिए। इसका काम था फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। इसने जितने पैसे उसने वेपन खरीदने के लिए मांगे थे वो इसने पैसे दे दिए। अब जब वो वेपन खरीद के आ रहा था उसी टाइम पर वो पकड़ा गया, तो इसलिए वो काम नहीं हो पाया। नहीं, पर कोई टारगेट आइडेंटिफाई, टारगेट इसको अब वेपन आने के बाद फिर वो उसी से पहले ही स्टेज पे। और बाबा आईएसआई के किस तरीके से संपर्क में था वो कुछ आईपी एड्रेस से पता चल पाया है सर? कि जैसे हम लोग अगर दावा कर रहे हैं कि आईएसआई सीधे इन्वॉल्व है, तो बाबा का भी कोई कनेक्शन होगा जो आईएसआई से जुड़ा होगा? हमें फ्यू सस्पिशियस आईपीज जो मिले हुए हैं वो दे आर बेस्ड इन कराची, तो इसलिए कनेक्शन मिल रहा है। जो 1.5 लाख रुपए आए थे वो मनीष को बोला, बाबा पठान ने मनीष को बोला कि भाई 10 रुपए के कोई भी नोट है उसका नंबर आप मुझे बता देना। ये प्रवीण ने 10 रुपए के नोट का नंबर जो हैंडलर है उसको बताया। जो मुंबई में पैसा आया वो एक आंगड़िया में आया, और आंगड़िया में भी 10 नंबर का उसने नोट बोला, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। उस आंगड़िया में इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वो पैसा दुबई से आया हुआ है, एक व्यक्ति ने दुबई से भेजा गया हुआ है। સર આ ભૂપેન્દ્રને પૈસાની જરૂર હતી એટલે આખું આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયો હતો, શું એની પૂછપરછ પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ? बेसिकली जो प्रवीण है वो उसको पैसे की ज़रूरत तो थी, ऊपर से मेंटेलिटी उसकी थोड़ी सी क्रिमिनल टाइप की जो साइकोलॉजी है वो क्रिमिनल टाइप की है ही। सर दूसरा एक सवाल ये, चूँकि आईएसआई अब तक के जितने मॉड्यूल है, हालांकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट नहीं है, बट अमूमन मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को इस्तेमाल करते हैं। पहली बार देखा कि उन्होंने कुछ इस तरीके से नहीं देखा इन लड़कों को भूपेंद्र नाम है या उन तरीके, तो उसके पीछे कोई सारी या कोई डाउट न जाए क्या उसके पीछे की लड़की? इसलिए हमने इसको न्यू मॉड्यूल ऐसे नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ये लोग जो क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले और ग्रीडी जो लालची लोग हैं उनको फाइंड करके उनसे काम करवा रहे हैं। वो आईएसआई के मॉडल में सर मनी ट्रैप ने वो सब भी चल रहा, इस केस के अंदर वो वाला मॉडल है। दिस इज मनी ट्रैप। ये इसमें मनी ट्रैप किया हुआ है, नीडी मतलब उसमें बेसिकली जो मैंने बोला कि रिक्रूटमेंट जो होता था उसमें फेसबुक पे चैटिंग करते करते ये लोग जान लेते थे कि इसको किस की ज़रूरत है, मतलब इसको पैसे की ज़रूरत है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर आगे आगे वो उसको ट्रैप करते थे। सर वो कैसे टारगेट करते थे कि यही एक्यूज है, कोई ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे सर? मैंने पहले भी बोला कि उसने जो फेसबुक प्रोफाइल जो बनाया था उसमें गैंगस्टर्स के फोटो थे, गन्स के फोटो थे, तो अपने जैसे अपना जैसा प्रोफाइल होता है वैसे लोग अपने सजेशन में आते हैं, तो सजेशन में फिर वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली तो फिर उसके साथ चैटिंग करता था। फिर चैटिंग करे थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया, उसको लगा कि ये मेरे काम का बंदा है, तो उसको व्हाट्सएप पे वो स्विच करता था, और तभी लगा कि ये अपना काम कर ही देगा, फिक्स हो गया, तो फिर उसको और सिक्योर्ड जो प्लेटफॉर्म से उसमें वो ट्रांसफर कर लेता। और कब से एक्टिव है फेसबुक पे और इस प्रवीण के अलावा और किसको टारगेट किया हुआ है? इस एक्टिविटी इसकी जनवरी 2020 से चल रही है, जो हमें ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। जनवरी 2020 से इसकी एक्टिविटी चल रही है। इसके फ्रेंड लिस्ट में ऑलमोस्ट 117 लोग हैं। वी आर जस्ट चेकिंग वेरीफाइंग कि इसके साथ क्या क्या, मतलब किसके साथ क्या क्या हुआ है। सर दूसरा एक सवाल, ये मोटिव सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कोई इवेंट होती है या कोई घटना होती है, यहाँ पर रात को आग लगाई जाती है जहाँ पर कोई नहीं है,
ठीक है, अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए वो पीपीई पहन के जाता है, आग लगाता है। तो इसमें डर या वो किस तरीके से क्रिएट हो, इसमें तो मतलब वो लॉजिक तो पूरा ही एक्चुअली जो है इसने जो बाबा ने बोला गया भाई जान हानि होनी चाहिए और ज़्यादा आर्थिक नुकसान होना चाहिए, उसने आग लगाई, उसने वीडियो क्लिपिंग भेजी, तब हैंडलर इसको बोलता है भाई इसमें मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया मतलब इसमें कोई किसी की जान गई नहीं, साथ ही दुकान चले, तो वो बोलता है भाई इस काम में मज़ा नहीं आया। मतलब उसका मोटिव था ही जान हानि करवाना और बड़ा आर्थिक नुकसान करवाना। आग जल्दी बुझ गई इसलिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान होता। इसमें एक चीज़, अगर आपने उस एरिया को देखा है तो जानते हैं बहुत ही कंजस्टेड विस्तार है वो, और वहाँ पर अगर समय से फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं पहुँचते तो ये आग बहुत बढ़ सकती थी और फिर इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता था और उसके साथ साथ में कुछ जान भी जा सकती थी। बट वो टाइमली रिस्पॉन्स की वजह से उसको कंट्रोल कर लिया गया। दूसरा, इसमें जो एक सिस्टम रहता है हैंडलर्स का, वो जो नीचे एजेंट है उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनकी टास्किंग करते हैं। अगर पहले ही दिन उसको हार्ड टास्क दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि ये उसके साथ काम ही ना करे। तो वो टास्किंग इस तरह से करते हैं कि आप पहले, जैसे उसने कहा कि तुम अपने हिसाब से चूज़ करो, फिर उसने कहा कि ऐसी जगह देखो जहाँ पर कि आग आसानी से लगाई जा सके। तो आगे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं उस हिसाब से इसमें जो टास्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटिव टास्क्स आते जाते हैं। तो इस तरह की ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। सी दिस इज अगेन अ स्लीपर सेल। स्लीपर सेल का मतलब यह है जो चीज़ बाहर नहीं होती है और वो चुपचाप शांति से काम करते हैं। तो ये अभी तक ये उसी टाइप से काम कर रहे हैं, जो हैंडलर जो निर्देश देता है उसके बेस पर काम करना, ये स्लीपर सेल का काम होता है। सर पूरी लिस्ट आई है, उसमें गुजरात के सब बंदे या और इंडिया, वो हम आपको बताएंगे। सर दूसरा दोनों कांटेक्ट में थे बाबा और सर उससे सपोर्टिंग मार्च 2020 से। सर हमने वर्चुअल नंबर से तो आइडेंटिफाई कर दिया, वर्चुअल नंबर तो स्टेडी नहीं रहेगा, अलग अलग कंट्री का दिखाएगा। तो समहाउ हमारे इतनी एक्सपर्टाइज है कि हम जान लीजिए कि कराची या इस्लामाबाद में कहीं पर बैठा है पाकिस्तान। क्या हम ये जान सके हैं कि फिशिंग पेज बनाने वाला शख्स बाबा ओरिजिनली कौन है? ये कोई जानकारी हमारे पास आ रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। दिस इज प्रिलिमिनरी स्टेज, एफआईआर जस्ट हुआ है, हमने अरेस्ट किया। इसके बाद टेक्निकल एक्सपर्टाइज वगैरह हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। उसके बाद एग्जैक्टली हम वी विल पिन पॉइंट एक्यूज। सर इसको नेक्स्ट टारगेट क्या दिया नहीं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अब बताएंगे। काम हो गया वो कैसे किया? सी देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुड नॉट डिस्कस। वो जो इंटेलिजन्स इनपुट्स हैं वी शुड नॉट डिस्कस। સેક્શન મુજબ આ લોકો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ થશે। આમાં આઈપીસીના કલમ 436 છે, 120B, 121A અને UAPAની કલમ 16, 18, 18B, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટની કલમ 66C આ હેઠળ ગુનો દાખલ થયો છે। ઓકે, બાકી રહ્યું કોઈને કંઈ? થેન્ક યુ। થેન્ક યુ સર। જાણકારી આપવામાં આવી છે કે કઈ રીતે આ યુવકોની સાથે સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો। ફેસબુકના માધ્યમથી આ યુવકો સાથે સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી કે કઈ રીતે આગ ચંપી કરવાની છે। આગ ચંપી કરાવ્યા બાદ તેમને પૈસા પણ પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા। આતંકી સંગઠન આ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલું છે। આતંકી સંગઠનો તરફથી આ યુવકોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમને આ કામ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું।